پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریا پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خامس کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریاب انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مایوسی نے خامس کا دماغ ہی پلٹ دیا تھا۔ اس نے نامدار کے مکان کو آگ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیلتی چلی گئی اور 2-3 اور مکان بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ آگ کے شعلوں کے ساتھ بستی کے لوگوں کی چیخیں بھی آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ شیطانی کھیل جاری رہا۔ پھر دفتن ایک آدمی کسی طرف سے دوڑتا ہوا سامنے آ گیا۔ وہ نامدار تھا۔ ذریعہ وغیرہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے خامس نے نامدار پر بے پناہ تشدد کیا، لیکن اس نے زبان نہیں کھولی۔ مگر اس کا ایک مظاہرہ نہ جانے کہاں سے نکل کر سامنے آ گیا اور اس نے بتایا کہ ذریعہ وغیرہ باغ والے مکان میں موجود ہیں۔ اب نامدار کو بھی زبان کھولنی پڑی اور اس نے بتا دیا کہ ذریعہ اور اس کے ساتھی ٹیلے کی طرف بھاگ گئے تھے۔ اسے یقین تھا کہ زرمک وغیرہ بہت دور نکل چکے ہوں گے اور یہ لوگ رات کی تاریکی میں انہیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ اب خامس اور اس کے ساتھی اس باولی کے سامنے پہنچ چکے تھے جہاں زرمک اور ذریعہ وغیرہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سن کر وہ چونک گئے۔ وہ لوگ باولی کے سامنے کھڑے تھے۔ زرمک نے سرگوشی کی، ہماری تلاش میں کسی بھی وقت اندر آ سکتے ہیں۔ خاموشی سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھی رہو۔ کسی کا کوئی معمولی سی حرکت ہم سب کی موت کا باعث بن سکتی ہے۔ کندم، ذریعہ اور خوشی نما دیوار کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئیں۔ وہ تینوں خوف زدہ تھی۔ اب تک اگرچہ ان تینوں نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا تھا، لیکن اس وقت صورتحال مختلف تھی۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، گویا وہ چوہے دان میں پھنسے ہوئے تھے۔ اگر خامس اور اس کے ساتھی اندر آ گئے تو کسی کو مزاحمت کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ وہ لوگ انہیں گھوڑیوں سے بھون کر رکھ دیں گے اور ان کی لاشیں یہاں پڑتی سڑتی رہیں گی۔ زرمک نے خنجر ہاتھ میں پکڑ لیا اور رینگتا ہوا گڑھے سے اوپر جانے والی سیڑھی کے قریب دیوار سے چپک کر بیٹھ گیا۔ ان تینوں لڑکیوں کی حفاظت کی اس کی ذمہ داری تھی اور یہ تو اس نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ ان میں سے کسی پر کوئی آنچ آنے سے پہلے وہ اپنی جان دے دے گا۔ باہر اگرچہ دن کی روشنی پھیل چکی تھی، لیکن باولی کے اندر ایک کونے میں بنے ہوئے کھڈ میں ابھی تک تاریکی تھی اور شاید دن کی روشنی کبھی وہاں تک پہنچتی بھی نہیں تھی۔ یہاں کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ خامس کی چیختی ہوئی آواز زرمک کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ لوگ یقیناً اس باولی میں موجود ہیں، اندر جا کر تلاش کرو انہیں۔ اگر اس مرتبہ ان میں سے کوئی بچ کر نکل گیا تو میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ باولی بہت عرصے سے ویران پڑی ہے، اس میں سانپ اور بچھو وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ یہاں نہیں ہوں گے۔ ایک اور آواز سنائی دی۔ میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، خامس چیخا، اندر جاؤ اور تلاش کرو انہیں۔ اور اس کے کچھ ہی دیر کے بعد باولی کے اندر قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ غالباً 2 آدمی تھے جو باولی میں داخل ہو کر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہاں تو اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک آواز ابھری اور خامس کا جو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دوسری آواز سنائی دی، بلا وجہ یہاں وقت ضائع کر رہا ہے اور ان کے پاس اچھا خاصا وقت تھا، وہ لوگ کہیں دور نکل گئے ہوں گے۔ دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ خامس کو تم جانتے ہو، وہ کس قدر خبیث آدمی ہے اور جب تک اس کی تسلی نہیں ہو جائے گی یہاں سے آگے نہیں جائے گا۔ پہلے آدمی نے کہا اور پھر دوسرے ہی لمحہ ان میں سے کسی کی خوفزدہ سی چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی چی چی کی باریک باریک اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ کیا ہوا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ یہاں تو چمگادڑ بھرے ہوئے ہیں، نکلو یہاں سے، پہلے آدمی نے جواب دیا۔ 1 منٹ، دوسرا آدمی بولا، اور وہ آگے ایک چبوترا نظر آ رہا ہے، ذرا وہاں دیکھ لینے دو۔ زرمک چونک گیا۔ اگر وہ لوگ چبوترے پر چڑھ گئے تو ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا اور وہ خنجر کے دستے پر گرفت جما کر آنے والے لمحات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔
चंद सेकंड बाद ही ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे ईंटें एक दूसरे पर रखी जा रही हों, और ये आवाजें सुनकर ज़रियाब के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके साथ खुशनुमा बैठी हुई थी। ज़रियाब ने महसूस किया कि खुशनुमा का बदन होले होले कांप रहा था। ज़रियाब ने उसे अपने साथ लपेट लिया। ज़रमक तैयार बैठा था और ईंटों की बात उसने भी सुन ली थी। वो खंजे के दस्ते पर गिरफ्त जमाए सांस रोके बैठा रहा, और उससे आगे कोई गहरा खड्ड है, वो लोग यहाँ नहीं हो सकते, वापस चलो। और ज़रमक की ये आवाज़ अपने सर के बिल्कुल ऊपर से सुनाई दी। जो कोई भी था ईंटों पर खड़ा उस खड्ड के में झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गहरी तारीकी में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और वो ईंटों से उतर गया। और फिर कुछ देर के बाद वापस जाते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। ज़रमक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया और उसके अज़ा एकदम ढीले पड़ गए थे। कदमों की आवाज़ें दूर होती चली गई और फिर बौली के बाहर से एक आवाज़ सुनाई दी। बौली के अंदर कोई नहीं है और हमने अच्छी तरह देख लिया है, यहाँ चमगादड़ें भरी हुई हैं। तो फिर वो लोग कहाँ जा सकते हैं? ये खामोश की आवाज़ थी। मेरा ख्याल है कि वो लोग कहीं दूर निकल गए होंगे, उस शख्स ने जवाब दिया। अगर तुम मेरा मशवरा मानो तो हमें दरवेशपुर का रुख इख्तियार करना चाहिए। वो लोग उसी तरफ गए होंगे। रास्ते में एक दो छोटी छोटी बस्तियां हैं जहां से हमें उनके बारे में इतला मिल सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो दरवेशपुर ही का रुख करें, खामोश ने कहा, और वो लोग कुतुबपुर की तरफ भी जा सकते हैं। मैं और बशीरा कुतुबपुर की तरफ जा रहे हैं और तुम दोनों दरवेशपुर की तरफ चले जाओ। जहां भी नजर आए उन्हें गोलियों से भून डालो। खामोश और उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम जानते हो कि हम तुम्हारी वजह से अपने हथियार आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे बगैर हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो बंद करो ये बकवास, खामोश चीखा। रखेल शाह का नाम लोगों पर दहशत तारी करने के लिए काफ़ी है। कोई तुम्हारे सामने मज़ाहमत नहीं कर सकता। जाओ, अब रवाना हो जाओ और रास्ते में अपनी आंखें खुली रखना। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर घोड़ों की आवाज़ें सुनाई दी और वो लोग वहाँ से रुखसत हो रहे थे। बाहर हर तरफ खामोशी छा गई। ज़रमक और ज़रियाब वगैरह अब भी अपनी जगहों पर बेहिस्सो हरकत बैठे थे। तकरीबन 5 मिनट गुजर गए। फिर ज़रमक अपनी जगह से उठते हुए बोला, तुम लोग अभी यहीं बैठो, मैं बाहर की सूरत हाल का जायजा लेकर आता हूँ। मोहतात रहना, ज़रमक कुंदन ने कहा। हो सकता है कि ये उनकी कोई चाल हो और वो अब भी बौली के बाहर घात लगाए बैठे हों। मुतमिन रही आकाज़ादी, ज़रमक कहते हुए पत्थर की सीढ़ी पर चढ़ गया और वो कुछ देर तक कार्नस पर सीने के बल लेटा रहा और फिर लटक कर नीचे उतर आया। तारीकी में कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो दीवार के साथ साथ मोहतात अंदाज में कदम उठाए चलता रहा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था रोशनी बढ़ रही थी और बिल आकर वह बौली के शीशे में आ गया जहां सबसे पहले उन्होंने डेरा जमाया था। वो कुछ देर वहीं पर रुका, सुन गुल लेता रहा। कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वो दबे कदमों बौली के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। खंजर उसके हाथ में था और वह किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार था। दहाने के करीब पहुंचकर वो एक बार फिर रुक गया। चंद लम्हों तक सुन गुन लेता रहा और फिर कोई आवाज़ ना पाकर वो बौली से बाहर आ गया और चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। वो कुछ देर वहीं पड़ा खड़ा रहा और फिर अंदर जाकर उसने ज़रियाब और कुंदन वगैरह को भी बता दिया कि खामोश और उसके साथी वाकई जा चुके हैं। वो तीनों उस गड़े से निकलकर कार्नस पर आ गईं। ज़रमक ने उन्हें सहारा देकर नीचे उतार लिया और वो लोग बौली से निकलकर बाहर आ गए। खुशनुमा ने हस्बे मामूल पोटली संभाल रखी थी। धूप फैल रही थी और दूर दूर तक लहलहाती हुई फसलें चमकती हुई धूप में बड़ी बड़ी लग रही थी। बौली से चंद गज आगे खेतों में एक छोटी सी नदी थी। वो नदी के करीब आकर बैठ गए। नदी का पानी गदला था और कुंदन किनारे पर बैठकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। वो लोग रात भर के जागते रहे थे और उनकी आंखें सुर्ख और चेहरे सते हुए थे। तुम लोग यहीं बैठो, मैं उस टेले पर चढ़कर नामदार के गांव की सूरत हाल का अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूँ, ज़रमक ने कहा। मोहतात रहना, हो सकता है कि उनका कोई जासूस आसपास कहीं मौजूद हो, कुंदन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ज़रमक सर हिलाता हुआ टेले की तरफ चलने लगा। 400 गज खासा फासला था और उसने पीछे मुड़कर देखा। ज़रियाब वगैरह पौधों की आड़ में होने की वजह से नजर नहीं आ रही थी और मोहतात अंदाज में टेले पर चढ़ता रहा। हर चंद कदम के बाद वो किसी दरख्त के पीछे छुपकर सूरत हाल का जायजा लेने लगता। टेले पर चढ़कर वो दरख्तों की आड़ लेता हुआ एक जगह रुककर दूसरी तरफ देखने लगा और उसके साथ ही उसे सीने में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। गांव में अगरचा वहां से खासा दूर था,
लेकिन कई मकानों से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। जरमक को समझने में देर नहीं लगी कि खामोश और उसके गुर्गों ने गांव में ठीक ठाक तबाही मचाई थी। वो नामीदार और उसके घर वालों के बारे में सोचने लगा। पता नहीं उन दरिंदों ने नामदार को जिंदा छोड़ा था या नहीं। जरमक चारों तरफ देखने लगा और जब वो लोग वहां पहुंचे थे तो खेतों में लोगों को काम करते हुए भी देखा था, लेकिन इस वक्त दूर दूर तक किसी खेत में कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि किसान सुबह पो फटते ही खेतों में आ जाया करते थे। आसपास की ये सारी जमीनें उस गांव के जिमींदारों और काश्तकारों की थी। गांव में फैलाई जाने वाली तबाही के बाद जाहिर है कि किसी को खेतों का होश नहीं रहा होगा। एक बार तो जरमक का दिल चाहा कि वो खुद जाकर गांव की सूरत हाल का जायजा ले, लेकिन फिर उसने ये ख्याल ज़हन से निकाल दिया, अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन वह नामदार के बारे में जानने के लिए बेचैन था और मुसलसल चारों तरफ देख रहा था कि शायद किसी खेत में कोई आदमी नजर आ जाए तो उससे सूरत हाल मालूम करे। दफतन वह चौंक गया और बहुत दूर खेतों में पगडंडी पर एक आदमी साइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया और वह उसी तरफ आ रहा था। जरमक तकरीबन दौड़ता हुआ टेले से उतरकर खेतों में आ गया और पगडंडी से जरा हटकर टहली के दरख्त की आड़ में खड़ा हो गया और वह आदमी तकरीबन 5 मिनट में वहां पहुंचा था। जरमक दरख्त की आड़ से निकलकर पगडंडी पर आया तो साइकिल सवार उसे देखकर किसी कदर बदहवास हो गया। साइकिल का हैंडल लड़खड़ा गया था। रुक जाओ जवान, तुमसे कुछ पूछना है, जरमक ने हाथ उठाते हुए कहा। साइकिल लड़खड़ा रही थी। उस शख्स ने हैंडल पर काबू पाने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सका और नीचे गिर गया। जरमक ने जल्दी से आगे बढ़कर पहले साइकिल उठाई और फिर उस शख्स को सहारा देकर उठा दिया। डरो नहीं जवान, मैं कोई चोर डाकी नहीं हूँ और तुमसे कुछ पूछना है, कहाँ से आ रहे हो? जरमक ने कहा। आदमपुर से जी, उस शख्स ने खौफजदा लहजे में जवाब दिया। वो तकरीबन 50 साल की उम्र का एक दुबला पतला और कमजोर सा आदमी था। सरमई रंग की शलवार कमीज और कंधे पर एक रुमाल पड़ा था। वहाँ मेरी बहन रहती है। कल शाम में उसे मिलने गया था, लेकिन रात को तो उस गांव पर क़यामत टूट पड़ी थी। क्या हुआ और गांव के मकानों से धुआं कैसा उठ रहा है? जरमक ने पूछा। साथ वाली जागीर के आदमियों ने गांव पर हमला कर दिया था जी, उस शख्स ने बताया, और उन्हें कुछ लोगों की तलाश थी और उनका ख्याल था कि वह लोग नामेदार के घर में या उस गांव के किसी और घर में छुपे हुए हैं। उन्होंने बड़ी तबाही मचाई है जी, और उस गांव में उनके हाथों 3 बंदे मारे गए हैं और उन्होंने कई घरों को जला डाला है। क्या नामेदार भी मारा गया? जरमक ने पूछा। सुबह 4 बजे तक तो जिंदा था जी, उस शख्स ने जवाब दिया, और उसे बहुत मारा है उन लोगों ने। उसकी तो हड्डियां पिसलियां तोड़ दी हैं। गांव के कुछ आदमी उसे और 2-3 और जख्मियों को रेड़े पर डालकर शाहपुर अस्पताल ले गए थे। अब पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। शाहपुर अस्पताल? जरमक बड़बड़ाया। और क्या पुलिस को किसी ने इतला नहीं दी? इस इलाके का थानेदार भी शाहपुर में है जी, इतला दे दी होगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। अब आप पुलिस वालों को तो जानते हैं जी, उस शख्स ने जवाब दिया और फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम कौन हो जी? मैं परदेसी हूँ, गांव के मकानों से धुआं उठते देखकर ऐसे ही पूछ लिया था। तुम कहाँ रहते हो? जरमक ने कहा। उधर 4 कोस के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है, वहां रहता हूँ जी, और उस शख्स ने सिर्फ एक तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जरमक ने कहा, और वह शख्स चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर साइकिल पर सवार होकर वहां से रुखसत हो गया। जरमक भी कुछ देर वहां खड़ा गांव की तरफ देखता रहा और फिर टेले की तरफ चल पड़ा। जब वह बौली के सामने खेतों में पहुंचा तो खुशनुमा कुंदन के घुटने पर सिर रखे सो रही थी। कुंदन और जरियाब मदम लहजे में बातें कर रही थीं। जरमक उनके करीब बैठ गया और उन्हें सूरत हाल से आगाह करने लगा। उनकी बातों की आवाज़ सुनकर खुशनुमा भी जाग गई। धूप तेज हो रही थी और मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए, जरमक ने कहा। मुझे भूख लग रही है भाई, खुशनुमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिलहाल कुछ खाने का कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता, शायद रास्ते में कुछ मिल जाए, जरमक ने जवाब दिया। वो उठकर खेतों में चलने लगे और कुछ दूर अगरचा बैलगाड़ियों वगैरह का कुशादा रास्ता था, मगर जरमक जानबूझकर खेतों में तंग सी पगडंडी पर चल रहा था और वह सबसे आगे था। उसके पीछे कुंदन और फिर खुशनुमा और आखिर में जरियाब थी। जैसे जैसे धूप तेज हो रही थी, गर्मी बढ़ती जा रही थी। खेतों में गर्मी कुछ ज्यादा ही थी। उनके जिस्म पसीने में शराबूर हो रहे थे। कुंदन और दरियाब तो जैसे तैसे उसका साथ दे रही थी, लेकिन खुशनुमा का बुरा हाल हो रहा था।
भूख से उसकी आंतों में गिरें पड़ रही थी और वो बार बार लड़खड़ा रही थी। ज़रियाब उसे सहारा दिए हुए थी। अब नहीं चला जा रहा भाई, वो कराहते हुए बोली। भूख से जान निकली जा रही है, एक कदम नहीं उठाया जा रहा। खुशनुमा मेरी बहन, ज़रमक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये देखो ज़रियाब और कुंदन भी तो तुम्हारे साथ चल रही हैं। उन्होंने भी तुम्हारे साथ ही रात का खाना खाया था और उन्हें भी भूख लग रही होगी। हिम्मत से काम लो मेरी बहन, शायद आगे कोई बस्ती मिल जाए और खाने का कुछ बंदोबस्त हो सके। वो एक बार फिर चलने लगी और भूख और गर्मी से तीनों लड़कियां नढाल हो रही थीं। ज़रमक की अपनी हालत भी काबिले तारीफ नहीं थी, लेकिन वो किसी किस्म की कमजोरी जाहिर करके उन लड़कियों के हौसले पस्त नहीं करना चाहता था। दोपहर के 12 बजे के करीब वो लोग दरख्तों के एक झुंड में रुक गए और यहाँ एक छोटी सी नदी थी जो मशरक की तरफ से आकर दरख्तों के झुंड में होती हुई मगरब की तरफ खेतों में गायब हो गई थी। उस नदी का पानी अगरचा गदला था, लेकिन वह सब प्यासे थे और उन्होंने जी भरकर पानी पिया। खाली पेट इस तरह पानी पीने से ज़रियाब को मतली होने लगी और वो बड़ी मुश्किल से अपनी कफियत पर काबू पाने में कामयाब हो सकी थी। नदी से कुछ आगे एक खेत के किनारे पर वो रुक गया और पौधों के पत्तों को झुककर गौर से देखता रहा और फिर एक पौधा उखाड़ लिया। उसके साथ ही उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। वो शलजम था। उसने उठकर इधर उधर देखा और खेतों में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने झुककर कई शलजम उखाड़ लिए और दौड़ता हुआ लड़कियों के करीब आ गया। ज़रमक के हाथ में शलजम देखकर उन तीनों की आंखों में चमक सी उभर आई और ज़रमक ने शलजम नदी के पानी में धोकर एक झाड़ी पर रख दिए और फिर सब ने एक एक करके शलजम उठा लिया और इस तरह मजे ले लेकर खाने लगे जैसे सेब खा रहे हों। पेट भर गया और वह तकरीबन 1 घंटा दरख्तों के नीचे बैठे रहे और फिर उठकर चल पड़े। रास्ते में कुछ शलजम उन्होंने अपने साथ ले लिए थे। बाईं तरफ बहुत दूर खेतों में एक झोंपड़ा नजर आ रहा था, लेकिन वो लोग उस तरफ नहीं गए। तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद वो एक बार फिर रुक गए। आगे एक नहर थी और उसके दूसरी तरफ चंद मकानों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती नजर आ रही थी। वो पुलिया अबूर करके उस बस्ती में पहुंच गए। बस्ती में दाखिल होते ही चंद नंग धरंग बच्चों ने उन्हें घेर लिया और वह चंद कदम आगे बढ़े थे कि 2 आदमी एक मकान से निकलकर उनके सामने आ गए। परदेसी लगते हो तुम लोग, कहाँ जाना है? एक आदमी ने बारी बारी उनका जायजा लेते हुए पूछा। हम परदेसी हैं, कुछ देर आराम करना चाहते हैं और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो। ज़रमक चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, हम खाने के पैसे दे देंगे। मेहमान तो अल्लाह की रहमत समझा जाता है और उनसे खाने के पैसे लेना गुनाह है। आओ तुम लोग मेरे साथ आओ, उस आदमी ने कहा और उन्हें लेकर मकान में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही वह बोला, जीरा ओ जीरा, देख मेहमान आए हैं और उनके खाने का कुछ बंदोबस्त कर। एक उदेड़ उम्र औरत कमरे से निकलकर सामने आ गई और पहले तो उन्हें देखकर हैरान हुई और फिर एक कमरे में ले गई जहां चटाई पर दरी बिछी हुई थी और चंद मैले तकेले रखे हुए थे और तीनों लड़कियां तो अंदर दाखिल होते ही दरी पर गिर गईं और ज़रमक और उस शख्स से बातें करने लगा। औरत खाना तैयार करने के लिए कमरे से बाहर चली गई। आज दिन में इस तरफ कोई अजनबी तो नहीं आया था? ज़रमक ने पूछा। आया था, बल्कि आए थे, उस शख्स ने जवाब दिया। उसका नाम रवाद था और वह दोनों घोड़ों पर सवार थे और उन्हें किसी की तलाश थी। 3 खूबसूरत लड़कियां और एक मर्द, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो वो तुम ही लोग हो। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, ज़रमक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। उन्हें हमारी ही तलाश है। क्यों? रावत ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा और वह दोनों तो शक्लों से ही बहुत खौफनाक लगते थे। और तुम लोगों को क्यों तलाश कर रहे थे? लंबी दास्तान है, ज़रमक बोला। कुछ खानदानी दुश्मनी वाला मामला है। हम उनसे बचने के लिए आदमपुर में पनाह लिए हुए थे कि उन लोगों ने पिछली रात गांव पर हमला कर दिया। 3 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, कई जख्मी हुए और कई घरों को आग लगा दी। हम बड़ी मुश्किल से वहां से निकल सके थे। ये लोग हमें तलाश करते फिर रहे हैं और उनके साथ 2 आदमी और भी हैं जो हमारी तलाश में कुतुबपुर की तरफ गए हैं। तुम लोग कहाँ जाना चाहते हो? रावत ने पूछा। दरवेशपुर, ज़रमक ने जवाब दिया। ओहो, और वो शख्स चौंक गया। वहां जाना तुम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा और वो लोग भी उसी तरफ गए हैं। इसी दौरान जीरा खाना लेकर आ गई थी और उसने अंडों का आमलेट तैयार कर लिया था और कुछ रोटियां पका ली थीं। तीनों लड़कियां भी उठकर बैठ गईं और खाना खाने लगे। मेरा मशवरा मानो तो तुम लोग दरवेशपुर जाने का ख्याल जहन से निकाल दो, रावत ने बारी बारी उनके चेहरों को देखते हुए कहा। क्यों? और ज़रमक ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा।
रखेल शाह के आदमी चप्पे चप्पे पर तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे हैं क्या? और कुंदन के हाथ से नवाला छूट गया। वो अजीब सी नजरों से रावत की तरफ देखने लगी। 2 आदमी तुम लोगों की तलाश में कल भी यहाँ आए थे और 2 घुड़सवार आज आए थे, रावत ने कहा। उन्होंने बताया है कि तुम लोग रखेल शाह के मफरूर हो और अगर किसी ने तुम लोगों को पनाह दी तो उसके घर को आग लगा दी जाएगी। दरवेशपुर में तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। बेहतर है कि एक दो दिन यहीं रह जाओ और ये जगह तुम लोगों के लिए ज्यादा महफूज है। ये जानते हुए भी कि उन लोगों ने हमें पनाह देने वाले के घर को आग लगाने की धमकी दी है, कुंदन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हमदर्दी और नेकी का जज्बा अभी खत्म नहीं हुआ, रावत ने जवाब दिया। मैं नहीं जानता कि तुम लोगों का जागीरदार निमरान या जागीर से क्या तल्लुक है, लेकिन ये जरूर सुना है कि रखेल शाह ने जागीरदार को कैद कर रखा है और एक खूबसूरत लड़की उसका ये राज ले उड़ी है। रखेल शाह उस लड़की की तलाश में है। वो लड़की तुम तीनों में से कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि वो रखेल शाह और उसके दरिंदों से बची रहे। मैंने जागीरदार को जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा देखा था। कई मरतबा रखेल शाह से भी सामना हुआ। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों में। रखेल शाह के आदमी उस लड़की और उसके साथियों को शिकारी कुत्तों की तरह तलाश करते फिर रहे हैं। दरवेशपुर में तुम लोगों के लिए खतरा है। 2-4 दिन यहीं रह जाओ। तलाश किसी कदर सर्द पड़ जाए तो चले जाना। ये कौन सी बस्ती है और दरवेशपुर यहाँ से कितनी दूर है? दरमक ने पूछा। ये बस्ती और ज़मीनें भी जागीर ही की हदूद में वाक़ हैं, रावत ने जवाब दिया। और हम लोग अगरचा जागीरदार को उन ज़मीनों की कीमतें अदा कर चुके थे, लेकिन रखेल शाह के गुर्गों ने उस पर दोबारा कब्जा कर लिया। हर फसल की कटाई के मौका पर रखेल शाह के आदमी आ जाते हैं और सब कुछ समेट कर ले जाते हैं। मेरी तरह जागीर के हर शख्स को रखेल शाह से नफरत है। हर शख्स जागीरदार की मदद करना चाहता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि मदद किस तरह की जाए। अगर तुम लोगों का जागीरदार से कोई ताल्लुक है तो तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। खुशी उन लोगों को हुई थी और उन्हें हमदर्द मिल गया था और बिल आखिर उन्होंने ये तय किया कि आज की रात इस बस्ती में गुजारी जाए और सुबह होते ही यहाँ से चले जाएं। वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से रावत की बस्ती वालों को कोई नुकसान उठाना पड़े। वो रात उन्होंने बस्ती में गुजारी और सुबह रवानगी से पहले कुंदन, जरियाब और खुशनुमा ने बस्ती की औरतों के दिए हुए कपड़े पहन लिए। बड़े बड़े फूलों वाले प्रटांड कपड़े का घाघरा, चोली और बाहों में कलाई से लेकर कोहनियों तक प्लास्टिक की चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ और कानों में चांदी के बड़े बड़े बाले, नाक में नथनी और सर पर रंग बिरंगी ओढ़नियाँ। और इस लिबास में अगर उन्हें उलझन हो रही थी, लेकिन उससे उनकी हैबत तब्दील हो चुकी थी और उन तीनों को उनकी असल हैसियत से नहीं पहचाना जा सकता था। दरवेशपुर वहाँ से तकरीबन 6 मील के फासले पर था और रावत ने बस्ती से 3 रेड़ों का बंदोबस्त किया था। 3 रेड़ों का बंदोबस्त किया था और तीनों रेड़ों के घोड़े खूब पले हुए थे। जरमक ने भी अपना हुलिया बड़ी हद तक बदल लिया था। एक रेड़े पर जरमक और खुशनुमा थी और दूसरे रेड़े पर कुंदन और तीसरे रेड़े पर दरियाब, और उन तीनों को अलग अलग कर दिया गया था ताकि रास्ते में किसी को शुबा ना हो सके। वो लोग सुबह सवेरे ही बस्ती से रवाना हो गए। शहर में दाखिल होने से पहले ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि रखेल शाह के गुर्गे हर तरफ फैले हुए हैं, लेकिन वो लोग खरिये से निकल गए। सुबह 9 बजे के करीब वो लोग सब्ज मंडी के करीब रेहड़ों से उतर गए और रावत और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए एक तरफ चल पड़े। मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले बंजान के घर जाना चाहिए और उससे हमें वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल का इल्म हो सकेगा, कुंदन ने कहा। मेरा भी यही ख्याल है, जरमक ने जवाब दिया। और वो एक कच्ची बस्ती में रहता है। उसका घर तलाश करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वो मुख्तलिफ सड़कों पर चलते रहे। शक्ल सूरत और हुलियों से वो बंजारे ही लग रहे थे। कुछ मन चलों ने लड़कियों पर आवाज़ें भी कसे थे, लेकिन वो तीनों उनकी परवाह किए बगैर चलती रहीं। कच्ची बस्ती में पहुंचकर उन्हें बंजान का मकान तलाश करने में ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। मकान का दरवाज़ा एक मजहूल से आदमी ने खोला और जब उस आदमी ने इंकशाफ किया कि बंजान को 2 रोज़ पहले कत्ल किया जा चुका है तो वो लोग सन्नाटे में आ गए। वो मजहूल सा आदमी उन्हें अंदर ले गया और वो कमरे में बैठने देर तक बंजान के बारे में बातें करते रहे और फिर वहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर ही रहे थे कि ज़ोर ज़ोर से दरदराया जाने लगा और वह सब बुरी तरह चौंक गए। जरमक के इशारे पर उस मजबूर से शख्स ने बाहर का दरवाज़ा खोल दिया और 2 आदमी उसे धक्का देते हुए अंदर दाखिल हुए और उनमें से एक को देखकर दरियाब को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो रखेल का असिस्टेंट गोपांग था।
उन दोनों आदमियों को दरवेशपुर की तरफ रवाना करने के बाद खामस बशीरे के साथ कुतुबपुर की तरफ रवाना हो गया। कुतुबपुर का फासला भी आदमपुर से उतना ही था जितना दरवेशपुर था। खामस को हैरत थी कि ज़रियाब और उसके साथी रात ही रात में कहाँ गायब हो गए। आस पास कोई बस्ती भी नहीं थी। करीम तरीन जगह ये बावली थी और जहाँ कोई छुप सकता था, लेकिन उसके दो आदमी बावली के अंदर जाकर देख आए थे और वो लोग यहाँ भी नहीं थे। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो रात भर खेतों या किसी बाग में छुपे रहे हों। उसके ख्याल में वो यकीनन भागते रहे होंगे और उसे अफसोस इस बात का था कि ज़रियाब एक बार फिर उसके हाथ से निकल गई थी। ज़रियाब के हाथ न आने का गुस्सा उसने आदमपुर के लोगों पर उतारा था और कम से कम 3 आदमी उसके हाथों मारे गए थे और कई जख्मी हुए थे। 5-6 घरों को उसने आग लगा दी थी। नामदार को उसने गोली नहीं मारी थी, लेकिन उसकी इतनी पिटाई की गई थी कि उसकी कई हड्डियां टूट गई होंगी। अगर वह जिंदा बच भी गया तो जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाएगा। खामस अच्छी तरह जानता था कि आदमपुर जागीर की हदूद से बाहर था। जागीर में वो लोग जो कुछ भी कर रहे थे उन्हें पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। पुलिस रखेल शाह की दर खरीद थी और लोगों पर उनकी ज़्यादतियों से आगाह होने के बावजूद पुलिस वाले सब कुछ नज़रअंदाज कर रहे थे। खामस जानता था कि जागीर के हदूद में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आदमपुर की बात और थी। ये कस्बा उस जागीर के हदूद में शामिल नहीं था, लेकिन खामस ने वहाँ जो कुछ किया था उस पर वहाँ के लोग खामोश नहीं रह सकते थे। बात उस इलाके की पुलिस तक पहुँच गई होगी। कोई मामूली बात होती तो शायद पुलिस नज़रअंदाज कर देती, लेकिन सूरत हाल संगीन हो गई थी। 3 कत्ल हुए थे, कई आदमी जख्मी हुए थे और कई घरों को जलाकर राख कर दिया गया था। आदमपुर के लोग भी जानते थे कि खामस कौन था और उसे किसकी आशीर्वाद हासिल थी। उसके साथ रखेल शाह का नाम भी आएगा और रखेल शाह पहले ही झंझलाया हुआ था और उसे 2 दिन पहले उन्होंने जो कुछ किया था उससे भी रखेल शाह के लिए मसाइल पैदा हो गए थे। उस रोज बस के मुसाफिरों ने बद्री को पुलिस के हवाले कर दिया था और बद्री ने पुलिस को बताया था कि यह सब कुछ रखेल शाह के इशारे पर किया जा रहा है और आदमपुर का ये वाकया रखेल शाह तो पागल हो जाएगा और वह खामस को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गुज़श्ता रात खामस ने गुस्से और जुनून में आदमपुर में कत्लो गारत तो मचा दी थी, लेकिन अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था। नामदार पर ज़रियाब वगैरह को पनाह देने का शुबा था तो सिर्फ उसी पर तशद्दुद करके उससे ज़रियाब वगैरह के बारे में मालूम करने की कोशिश करता, लेकिन उसने गुस्से में बेकाबू होकर जो कुछ किया था उस पर अब वो डर रहा था और उस पर खौफ ना तो पुलिस का था और ना ही लोगों का। खौफ तो रखेल शाह का था। रखेल शाह दुनिया का वाहिद शख्स था जिससे वो डरता था। उसके अलावा किसी और को वो खातर में नहीं लाता था और रखेल शाह को जब उस ताज़ा तरीन सूरत हाल का पता चलेगा तो वो अपने हवास को बैठेगा। ना सिर्फ ये कि ज़रियाब उनके हाथ नहीं आई थी, बल्कि इस कत्लो गारत से संगीन मसाइल भी पैदा हो सकते थे। खामस ने घोड़ा रोक लिया और वह बावली से 3 कोस दूर निकल आए थे। तेज धूप में उसका दिमाग पिलपला हो रहा था। पसीने की धारें गर्दन पर कींचुओं की तरह रेंग रही थीं। वो घोड़े पर उछल कर इधर उधर देखने लगा। बाएं तरफ काफी फासले पर एक झोंपड़ा नमा मकान नजर आ रहा था और उसने बशीरे को इशारा करते हुए घोड़े का रुख उस तरफ मोड़ दिया। बशीरा भी नडाल सा होकर घोड़े पर बैठा हुआ था और वो कल दोपहर से खामस के साथ दौड़ा दौड़ा फिर रहा था और उसने कल दोपहर को थोड़ा बहुत खाना खाया था और उसके बाद एक खेल तक उड़कर उसके मुंह में नहीं गई थी। सिर्फ पानी पर गुजारा हुआ था और अब तो कई घंटों से पानी का घोंट भी नहीं मिला था। उसके हलक में कांटे पड़ रहे थे और तेज धूप में उसका जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था। कई मरतबा उसके ज़हन में ख्याल आया था कि खामस को छोड़कर भाग जाए, लेकिन फिर यह ख्याल उसने ज़हन से निकाल दिया। वो पिछले 2 दिन से खामस के साथ मिलकर जो कुछ भी करता रहा था और उसे फांसी पर चढ़ा देने के लिए काफ़ी था। अब तक उसके हाथों कई कत्ल हो चुके थे और एक आदमी तो कल रात ही उसके हाथों मारा गया। उसने 2 मकानों को भी आग लगाई थी और वो खामस को छोड़कर नहीं भाग सकता था। खामस दुनिया के आखिरी कोने तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और फिर उसकी भलाई खामस के साथ रहने में ही थी। वो जानता था कि खामस रखेल शाह का दस्ते राज था और रखेल शाह उन्हें हर मुसीबत से बचा सकता था। खामस से अलग होने की सूरत में वो पुलिस के हाथ लग गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचने से नहीं रोक सकेगी। वो झोंपड़े के करीब पहुंच गए। आस पास कोई नहीं था, लेकिन आसार बता रहे थे कि यहाँ कोई रिहाइश पजीर जरूर है। झोंपड़े के सामने बांध की एक झलंग सी चारपाई पड़ी थी और उसके करीब ही पानी का एक मटका भी रखा हुआ था जिस पर प्लास्टिक का एक मैला सा गिलास भी पड़ा था।
खामस घोड़े से उतरकर मटके की तरफ लपका और उसने गिलास उठाकर एक तरफ फेंक दिया और दोनों हाथों से मटका उठाकर होंठों से लगा लिया। कुछ पानी उसके मुंह में जा रहा था और कुछ नीचे बह रहा था। पानी पीने के दौरान उसने 2 मरतबा सांस लिया और उसने मटका नीचे रख दिया और इधर उधर देखने लगा। बशीरा तेजी से आगे बढ़ा और उसने जमीन पर पड़ा हुआ गिलास उठाया और मटके से पानी निकालकर पीने लगा। 2-3 गिलास पीने के बाद वो भी मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। उस जगह टहली के 5-6 दरख्त थे जिन्होंने झोंपड़ी को अपने साए में ले रखा था। बशीरे और खामोश उसकी तरफ देखते हुए बोला, भूख लगी है, कुछ खाने का बंदोबस्त कर, देखता हूं और शायद झोंपड़े में कुछ मिल जाए। बशीरा कहते हुए झोंपड़े में घुस गया। झोंपड़े के अंदर भी एक चारपाई पड़ी हुई थी और जिस पर एक खेस बिछा हुआ था और मैला तकिया पड़ा था। कुछ और चीजें भी थी लेकिन खाने की कोई चीज नजर नहीं आई और वह झोंपड़े से बाहर निकला तो खामस चारपाई पर लेटा हुआ था। यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है, उसने बताया, कुछ तलाश करो और मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। खामस चीखा और इससे पहले कि बशीरा कोई जवाब देता, झोंपड़े की पिछली तरफ से किसी बकरे के मिमियाने की आवाज सुनाई दी। खामस एक झटके से उठ गया और तेज तेज कदम उठाता हुआ झोंपड़े की पिछली तरफ चला गया। चंद मिनट बाद वापस आया तो उसने बगल में एक बकरी दबा रखी थी। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे किसी बच्चे ने बगल में कोई खिलौना दबा रखा हो और बकरी बुरी तरह मिनमिना रही थी।